Student, I have told you how to find the square root of a complex number, and today is mathematical induction. ठीक है? Mathematical induction. See, there was a mathematician named Piano, and he gave the three statement for any equation in mathematics. He said that if a particular equation is true for n equal 1, then it is true for n equal k. And if it is true for n equal k, then definitely it is true for n equal k plus 1. Okay, this is known as mathematical induction. Now, how can you do the problems related to the mathematical induction? Suppose that there is a series 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 up to plus n equal, bolo, 1, 2, 3, 4, 5 up to n. These are the natural numbers now. What is the sum of these numbers? Who will tell me? What is the sum of these numbers? Anyone? Can you tell me what are the sum of numbers, natural numbers from 1 to n? Anyone? What are the sum of natural numbers? ये भी बताना पड़ेगा. देखो, you know what is the common difference? The common difference is, देखो, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2 1, 4 minus 3 1, 5 minus 4 1, 6 minus 5 1. Since the common difference is same, so definitely it is in AP. ठीक है? And the first term of AP is 1, and the common difference is also 1. And the total terms are how many? N. So there are n terms. ठीक है? Total number of n terms. Now what is the formula for n sum of n term? N by 2, 2a plus n minus 1 into d, as you know. This is the AP ना, and AP के आपको फॉर्मूला पता है. ये n equal n by 2 to a plus n minus 1 into d. This is the formula, and here there are total n terms, so n divided by 2, and first term 1, so put here 1, n minus 1 into, and the common difference is 1. After simplification, देखो plus 1 minus 1 cancel out, then it is only n by 2 and 1 plus n minus 1. यहाँ एक चीज होती है 2a n by 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है? 2 minus 1 कितना आ जाएगा? n. This is equal to 2 minus 1 1, and n into n plus 1 divided by 2. This is SN. This is the formula of SN. और आपको पता है AP के n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN equal n into n by 2 to a plus n minus 1 into d. This is the formula, and if you are putting the value of a and d, then you will get the total sum. But here in this chapter, you have not to find the sum.
will be already given in the question. ठीक है, तो this is total sum of n terms is n into n plus 1 divided by. अब आपसे क्वेश्चन करेगा कैसे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे मैथमेटिकल इंडक्शन में आएंगे कैसे। देयर विल बी ए सीरीज ऑफ दिस टाइप, ठीक है, एंड यू हैव टू चेक दैट द सीरीज इज करेक्ट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है? By using mathematical induction, you have to check that if this series is correct, and if it is correct, then you will say yes, it is correct, and if it is not, then you will say it is not correct. अब the most problem is what? देखो, जैसे कोई सीरीज चलती है, जब सीरीज चलती है तो सीरीज में जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, इसका यहाँ पे लास्ट टर्म n दे रखा है, लेकिन अगर यही बात करें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, और अब इसका सम यहाँ पे सपोज है कि यहाँ पे सम दे रखा है n के टर्म में, लेकिन इसका लास्ट टर्म जो जीपी जैसे एपी का लास्ट टर्म आप फाइंड करते हैं, इसका लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, इसका सम दे रखा है, क्योंकि देखो फर्स्ट ये भी एक एपी में 3 माइनस 1 2 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, इट इज मतलब ऑल्सो इन एपी, और अगर एपी में है तो डेफिनेटली n टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा Sn इक्वल n बाई 2 और 2n प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला लग जाएगा, और इस फॉर्मूले में n टर्म का सम निकालना है, n तो n ही रहेगा, 2 इंटू a इज 1 फर्स्ट टर्म 1, so it is 1 और प्लस n minus 1 d is d minus 1 2, ठीक है, so it is equal to n by 2 2 plus 2n minus 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू हमने क्या कर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 से n इंटू n, तो दिस इज n, n minus 1 into d, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी है जो 2n में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से टोटल सम आपको n स्क्वायर दे रहा है ऐसे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें आपको लास्ट का n टर्म दे रखा है और सम दे रखा है, इस सीरीज में लास्ट का n टर्म नहीं दे रखा है, लेकिन टोटल सम n टर्म का दे रखा है n स्क्वायर। अगर ये एपी में है, इसका n टर्म कितना होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एज यू नो, तो a इज 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू d इज व्हाट, d माइनस 1 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1, यहाँ पे लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, 2n माइनस, ठीक है, ऐसे। तो पर्पस क्या है आपको बताने का, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है आपको लास्ट का n टर्म्स गिवन ना हो, या ये भी हो सकता है कि n टर्म गिवन हो, दोनों कंडीशन, जैसे पहले में गिवन था दूसरे में गिवन नहीं था, तो आप निकालोगे कि इसका n टर्म क्या है, इस बात को
n टर्म पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये तो पहला प्रोसीजर, पहला स्टेप हो गया कि अगर किसी भी सीरीज में आपको n टर्म गिवन नहीं है तो n टर्म फाइंड करो। पर अगर सब कुछ दे रखा हो, n टर्म भी गिवन है, इसका टोटल सम दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब कि मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करो कि ये सही है। ठीक है, तो आप इसके बाद आप जो भी बताने जा रहे हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप है, इसके पहले का काम आपको कर लेना। चलो स्टेप वन देखो कैसे चेक करते हैं। स्टेप वन, अगर आपको लास्ट का टर्म दे रखा है, इधर का तो देगा ही देगा, अगर लास्ट का n टर्म दे रखा है और ये दे रखा है तो यहाँ पे स्टेप वन में आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में एक ही काम करना है, क्या करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल, चाहे जो भी क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, चाहे जो भी क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको स्टेप वन में लिखना है लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1 और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको Pn से डिनोट करना है। Pn इक्वल n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ हमने लिखा लास्ट का टर्म और ये टोटल का टर्म, ठीक है, देखो लास्ट का टर्म और टोटल का सम ये लिख दिया। अब जब ये n इक्वल 1 के लिए सही होगा तो P1 यहाँ पे लिखेंगे, n की वैल्यू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ गया और यहाँ कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 1 इक्वल 2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 1 इक्वल 1। क्लियर? तो अगर आपके पास इसका लास्ट का टर्म पता है तो n के जगह पे यहाँ पे 1 रख देना और यहाँ पे 1 रख देना, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव इट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आप n की जगह पे यहाँ पे 1 रख देना और यहाँ पे 1 रख देना लास्ट वाले टर्म में, और दोनों तरफ आपको इक्वल आना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 आ गया है, कोई जरूरी नहीं सब में 1 आए, किसी में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो कुछ भी मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो दोनों तरफ इक्वल ही आएगा। ठीक है, पहला कंडीशन, n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे और n की वैल्यू इस साइड और उसको कंसीडर करेंगे Pn से। Pn is why is because it is on the name of mathematician Peano. That was Peano was a mathematician, and on the basis of his name, it is denoted by P. ठीक है, उन्हीं के नाम पे इनको P से डिनोट करते हैं स्टेटमेंट को, और इसको बोलते भी है Peano का स्टेटमेंट। अब देखो Pn इक्वल 1 n इंटू n प्लस 1, ये सभी जो भी क्वेश्चन है सब में एक ही स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, नोट डाउन, सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। स्टेप सेकेंड, स्टेप 2, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 3। पहला में कहा कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1
और जब दूसरा स्टेप बोलेंगे तो बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k। और जहां पी एन दिया था देखो पी एन इक्वल कितना एन इक्वल एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे एन के जगह पे क्या लिख देना है के, और कुछ नहीं करना है। तो सेकंड स्टेप तो बहुत सिंपल होता है, सिर्फ एन के जगह पे के लिखना होता है। यानी पी के इक्वल के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई जे। सिर्फ एन के जगह पे के लिखना। अब देखो थर्ड स्टेप में पहला स्टेप था लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल वन, n के जगह पे वन रख दिया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। दूसरे स्टेप में हमने सपोज किया कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k, तो n के जगह पे k यहाँ पे रखा और n के जगह पे यहाँ पे रखा, ऐसे आ गया। अब थर्ड में सपोज करेंगे कि इफ इट इज true for n equal k, then will also true for n equal k plus 1। अब k plus 1 रखने का हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये देखो, ये k लास्ट वाला इधर का टर्म लेना, k इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आ रहा है। तो जब k के जगह पे k प्लस वन रखेंगे तब भी वो ऐसे ही आना चाहिए। अगर सिर्फ इसी पैटर्न पे आता है तो आपका सही है k प्लस वन के लिए, और नहीं तो गलत। ठीक, कम टू द स्टेप 3। सीधा स्टेप 3, तो n इक्वल k प्लस। अब n के जगह पे पहले n इक्वल k था, अब n की जगह पे k प्लस वन रखेंगे। अब जब k प्लस वन रखते हैं तो करते क्या है, यहाँ इस स्टेप को समझना। दो स्टेप तो बहुत आसान है कि पहले n की जगह पे वन रख देना, दूसरे में n इक्वल k रखना। जब n इक्वल k प्लस वन रखेंगे तो उसका स्टेप देखना। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड प्लस इस n को k लिख लेना, इस n को k लिख लेना, ठीक है। अब आगे समझो, अगर सीरीज प्लस में चल रहा है तो प्लस समझो यहाँ पे प्लस, और अगर मल्टीप्लाई में चल रहा है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, यहाँ, ठीक है। तो प्लस, ये प्लस में चल रहा है, प्लस कितना बनेगा, और प्लस में इस n के जगह पे जो हमने रखा है k प्लस वन, वो k प्लस वन इधर, और अगर k प्लस वन इधर ऐड किया है तो वही काम उधर भी करेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। कैसे देखो, k इंटू k प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये तो n का k के टर्म में है, और जब इनको प्लस रखेंगे तो प्लस कितना कर देंगे k प्लस, क्योंकि इधर ऐड किया है ना n के जगह पे k प्लस वन, तो k प्लस वन इधर भी ऐड करेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कट करके फिर वही चीज आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे k इंटू k प्लस वन प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई टोटल, क्योंकि इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे k में, और इस 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2, ये टोटल आपका और टोटल डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज k प्लस वन, और इन दोनों में 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा k प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय। Now in these two terms again there is a common k plus 1. See, again in these two terms there is a common k plus 1. So here you can say it is equal to k plus 1
एंड के प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से के प्लस 1 कॉमन लेंगे, कॉमन लिया तो यहाँ के बचा और यहाँ बच गया प्लस 2, ये आ जाएगा के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक तो हम कैलकुलेशन करते चलते रहते हैं। अब इसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है, जो आपने n की वैल्यू k प्लस 1 रखा है वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो सी अगर k प्लस 1 को इसको ऐसे लिखे हैं, देखना k प्लस 1 और k प्लस 2 को k प्लस 1 प्लस 1 लिख दें डिवाइडेड बाई 2, तब आप क्या देखोगे, देखो अगर n के जगह पे k प्लस 1 रखा तो इतना n हो गया और इतना n प्लस 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2। देखो k प्लस 1 को n अगर रखा, क्योंकि n के जगह पे k प्लस 1 है ना, तो अगर k प्लस 1 के जगह पे n रखा है तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यही सेम आ रहा है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तब आप क्या कहोगे, hence यहाँ से लिख लेंगे दिस इज ट्रू, ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1 एंड हेंस, ठीक है। बस इतना ही पियानो है और यही आपको करना है हर क्वेश्चन में। पहले n की वैल्यू 1 लेना है, 1 के बाद k लेना है और फिर n की जगह पे k प्लस 1 रख करके सिंप्लीफाई कर देना है। और सिंप्लीफाई करते समय ध्यान रखना कि लास्ट का जो इधर का सम जो भी दिया रहेगा सेम उसी के पैटर्न पे आना चाहिए। अगर सेम वैसे नहीं आता है तो आपका वेरिफिकेशन गलत है। नोट डाउन स्टूडेंट्स, नोट डाउन। रिटर्न have you written? खुशी, आशुतोष, अग्रिम, तन्मय, गरिमा,
ओके, आई एम टेकिंग a question और सी 1 स्क्वायर एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं, वो तो सिग्मा एन का था, अब सिग्मा एन स्क्वायर है, मतलब सिग्मा एन इक्वल एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये होता है, ये फॉर्मूला है सिग्मा एन इक्वल एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सिग्मा एन इंटू एन इक्वल एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन स्क्वायर और उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई। तो अभी तो आपने इसका देखा है, अब इसका देखो, आपसे ऐसे बोले क्वेश्चन में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर इक्वल n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर, और आपसे पूछ रहे हैं प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मींस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज करेक्ट और नॉट। तो फिर वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेट n इक्वल 1। तो स्टेप क्या लेंगे, स्टेप 1 जो आपको बताया स्टेप 1 में, let it is true for n इक्वल, और अगर n इक्वल 1 के लिए सही है कि n इक्वल कितना, n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही n है, n के जगह पे 1 रख करके देख लो, E1 इक्वल 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 1 इक्वल 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6 which is equal to 1 equal 1। So it is true for n equal, क्योंकि यहाँ पे 1 रख देंगे और यहाँ पे 1 रख देंगे तो दोनों तरफ इक्वल आएगा। सो यू कैन से कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। नाउ कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2, let it is true for n equal, and it is केस सेकेंड स्टेप तो वैसे ही आसान होता है क्योंकि जस्ट n के जगह पे k आपको रखना होता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई, what is step third? स्टेप थर्ड, दो स्टेप एज इट इज है। स्टेप थर्ड में पुट n इक्वल k प्लस 1, पुट n इक्वल k प्लस 1। अब यहाँ देखना ये भी प्लस में है, यहाँ पे आकर के प्लस करेंगे और राइट साइड में उधर प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, और ये जितनी सीरीज दिया रहता है उतना सब लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं। प्लस अब देखो k की जगह पे कितना रख रहे हैं
के प्लस वन, के के यहाँ पे के प्लस वन, अगर यहाँ के स्क्वायर है तो यहाँ कितना आ जाएगा के प्लस वन। भाई टोटल सीरीज लिख लो, टोटल सीरीज लिखने के बाद जो के है के के यहाँ पे के प्लस वन करके स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और यही टर्म उस साइड में भी ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा के इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 और प्लस के प्लस वन होल स्क्वायर, ये टोटल है। नाउ व्हाट इज पर्पस, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो टोटल टर्म जो है ऐसे ही आना चाहिए, अगर ऐसे नहीं आएगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कम टू सॉल्व। देखो देन अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें, के टू के प्लस वन टू के प्लस वन, ये तो यहाँ तक तो एडजस्ट है, ये 6 इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, 6 इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर एंड देन टोटल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से जो भी आपको सिंप्लीफाई होना होगा वो करेंगे। ठीक है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज टू टर्म, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा टर्म यहाँ से यहाँ तक का है। यहाँ देखो के प्लस वन है, यहाँ भी के प्लस वन है, तो के प्लस वन कॉमन कर लेंगे, के प्लस वन कॉमन, एंड इन द नेक्स्ट ब्रैकेट इस यहाँ बचा के टू के प्लस वन, और यहाँ 6 के प्लस कितना कम रिमेनिंग टर्म है, एंड टोटल डिवाइडेड बाय के प्लस वन, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा के, और ये 2 के प्लस वन और प्लस 6 और स्क्वायर का है टर्म, एक टर्म के प्लस वन बाहर निकला है, आ गया 6 के प्लस वन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट सॉल्व इन द ब्रैकेट, ये तो के प्लस वन लगेगा, ये आएगा के प्लस वन, और इसको जब सिंप्लीफाई ओपन करेंगे तो 2k इंटू के, 2k स्क्वायर प्लस k इंटू के, 1k प्लस 6 इंटू के, 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे k प्लस वन और 2k स्क्वायर प्लस k और 6k प्लस के 7k और प्लस 6 डिवाइडेड बाय, अब 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, अब इसको आपको करना है फैक्टराइज, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 को करना है फैक्टराइज। अब इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, तो स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म, ऊपर का यहाँ से रब कर देते हैं, देखो ये आ जाएगा k प्लस वन, और इस वाले ब्रैकेट में 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 7, और k प्लस वन, और इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन है 2k,
के अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ बचेगा के प्लस, यहाँ बचेगा 2, तो 2 जा 4 के बाहर आ गया प्लस, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे के प्लस 3 2 जा 6, 2 आएगा ब्रैकेट क्लोज, टोटल डिवाइडेड बाय, again there is a common k plus 2 in these two terms, so take out k plus 1, k plus 2 और यहाँ बचा 2k और यहाँ प्लस 3, टोटल डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट स्टेप देखो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ये था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, इसको लिखना तो देखो कैसे लिखेंगे, n के जगह पे k प्लस 1 अगर रखें तो ये आ जाएगा और ये k प्लस 1 n के जगह k प्लस 1 रखेंगे k प्लस 2 आएगा ना, मतलब इसको ऐसे लिखें k प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिखें और यहाँ पे 2n प्लस 1 है, यहाँ कैसे लिखे 2k प्लस 1 प्लस 1 दोनों ऐसे लिखे चलेगा, ऐसे डिवाइडेड बाय, क्यों, क्योंकि देखो 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 2k प्लस 3 यही हो गया और n के जगह पे अब सब में n के जगह k प्लस 1 रखेंगे देखो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 से यही टर्म आ गया, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस, it is true for n equal k plus 1. This is mathematical induction. Okay, students. So all the question you have to do like this. If it is asking ki prove that by mathematical induction, then you will just follow the steps. Okay, step 1, step 2, and step 3, so that you can solve. अगर एक भी स्टेप इधर उधर किए फिर आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो याद रखना है कि अगर प्लस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर लास्ट टर्म दिया नहीं है तो लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना है।